नमस्कार। अभिनंदन टाइम्स में आपका स्वागत है। ऑस्कर ग्लोबल पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों के पालन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी यातायात जगदीश लाल टमटा एवं प्रभारी निरीक्षक यातायात चंद्रकरण यादव ने बच्चों को सड़क पर चलने के नियमों को बताया। कार्यक्रम में खुदागंज थाने के सब इंस्पेक्टर दिनेश, कांस्टेबल दीपक चौधरी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सचिन बाथम, दून इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जसमीत साहनी एवं विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं, प्रबंध तंत्र में अवनीश सिंह, राहुल, शशांक सिंह, प्रेरणा जैन, ऋतु जैन, फरमान खान, नीरज भारती, गुलशफा अंसारी, मुस्कान अंसारी, स्नेहा राठौर, आरती वर्मा, राजकुमारी, मीरा शर्मा, सुदर्शन सिंह, अमन वर्मा एवं विद्यालय समिति के समस्त सदस्य मौजूद रहे। उप प्रधानाचार्य जिया खान ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। देखिए ये रिपोर्ट। Right the way. Yellow light, what do you say? I say, look, I say. Green light, what do you say? I say, go right the way. Come with me, let me show some traffic sign. This is no parking sign. No parking sign. This sign is very important in major cities. It prohibits vehicle park in this area. If the vehicle park in this area, driver will to pay penalty. This is no standing sign. No standing sign. This sign is very important in major cities. It prohibits vehicles standing in market areas. This is right and private. Right and private. This privates the driver not to start. It is necessary for us to follow the road safety and traffic signals rules. We should always look at the both sides of the road before crossing the road. We should always wear a helmet while riding two-wheelers and a seatbelt while driving four-wheelers. And the questions occurring according to the models are: what is the meaning of yellow lines on the road? If yellow lines, you should not pass the vehicle suddenly. What is the meaning of yellow stripe on the road? If yellow stripe seen on the road by you, that means you should overtake a vehicle in the lane. And what is the meaning of white lines on the road? And when does the white line seen? When the path is survived, then the white colored straight and long line seen, which means you did not change your lane again and again and go in the same lane. Above section 199. The section 199 is of IPC. The full form of IPC is Indian Penal Code. The founder of IPC is Thomas Babington. According to section 199, whoever in any declaration or made or signed by any court or public servant or a person to be taken as evidence for bond or authorized by any law, if any person stand against this action, he will pay the fine of for rupees 2500 and the jail of 6 years. And the important things is introduced by Maruti. Important things. If you wear helmet, then you shall pay fine for 2000 rupees. Next, if you have did not open helmet, then you shall pay fine for 2000 rupees. And next, if you drink too much and drive a vehicle, then you shall pay fine for 10,000 rupees. Thank you, sir. Traffic awareness and transportation, and you can see what are the type of transport and traffic you find in the water, on in the land, or in the sky. And I want to say some lines about traffic awareness and transportation. As we all know that we should follow traffic rules and be obedient towards traffic rules, and we should not jump or run on the road. Even if there is no one on the road, we should not move until the red light turns green. पहल की है, ये बहुत अच्छी पहल है। ये बहुत बड़ा एक गंभीर मुद्दा है। ट्रैफिक एक गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को अगर हम लोगों ने नहीं संभाला तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोग रोज मतलब देख रहे हैं, हो रहा है हमारा। और इसके लिए अगर आप जागरूकता की शिक्षा के अभियान अगर स्कूल लेवल पर चलाए आप लोगों तो आप लोग
धन्यवाद के पात्र हैं। हम भी आपके आभारी हैं, क्योंकि हम लोग इस जिम्मेदारी के जवाब हमसे मांगे जाते हैं कि कितने बजे क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये जो शानदार प्रदर्शनी एग्जीबिशन आपने यहाँ पर लगाई है, ये भी बच्चों को, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी से सब कुछ हो जाएगा। ये आपके दिमाग में कम से कम ये विचार आया है, तो फिर आप उस तरफ से कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे और कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन होगा और फिर हम लोग सुरक्षित होते रहेंगे। तो जागरूकता सबसे अहम चीज़ है। और बच्चे क्योंकि हमारे भविष्य हैं, हम आप पर उम्मीद करते हैं, आप हमारी उम्मीद हैं। और अगर आप सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर हमारी आशाएं जो हैं वो छीन हो जाएंगी। तो मैं तो ये समझ रहा था मैम कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बच्चे ट्रैफिक में आते हैं, आते जाते हैं, या ट्रैफिक का जो व्हीकल को चलाते हैं, अगर वो भी इसमें शामिल होते तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये बहुत छोटी एज के बच्चे हैं, जिन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि ट्रैफिक के बारे में जो सेंस होता है, वो सेंस मुझे लगता है कि और सभी बच्चों को, इसमें जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, वो भी हमको देख करके ये भी नहीं है कि हम डर जाएंगे और हम सड़क पर ही नहीं चलेंगे। सड़क पर हमको तब भी चलना है, चाहे हर 10 कदम पर कोई मर रहा होगा, लेकिन हमारी ज़रूरतें तो सड़क पर चल ही होनी है ना पूरी। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आप सड़क पर होते हैं, और सड़क हर एक आदमी निकलता है, चाहे आपका स्कूल का काम हो, आपके घर का काम हो, आपका बाजार का काम हो, आपका अपने किसी रिश्तेदारी में जाना हो, दाहिने बाएं की पीछे लगने की बजाय दाहिने से या बाएं से कहीं से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अब ये इस होड़ में जो है उधर से भी ऐसे ही करते हैं, तो वो बिल्कुल पैक हो जाता है। अब रेलवे क्रॉसिंग या सपोज तो उसमें कितनी जगह होती है, उसी जगह पे हम वो खुद ना तो यही आ पाते हैं आसानी से, नहीं यही जा पाते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा हम लोगों को सीखनी होगी, एक सेंस हमको डेवलप करना होगा, और उस सेंस के बिना हम सड़क पर सुरक्षित नहीं है। फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद में दौड़ आगे रेस लगती है। हाँ, बैठ जाओ बच्चा। 2 इंजर्ड होते हैं, अगर उस पर 2 होते तो एक तब भी बच जाता, तब क्या पता ही घटना भी नहीं होती। क्योंकि आप उसको कंट्रोल करने की जो आपकी जो पावर है, वो पावर आपकी उससे प्रभावित होती है। जब आपके पास 3 बैठे होंगे, 4 बैठे होंगे, तो फिर आप भी जाहिर सी कंट्रोल में नहीं होगा। आप मुड़ाना चाहेंगे उसको 30 डिग्री, वो नहीं मुड़ पा रहा है आपका 20 डिग्री भी, तो इसी में एक्सीडेंट होते हैं और फिर इसमें ज़्यादा हानि हमको होती है और हमारी हानि है। तो इस हानि से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार सब ये सरकार ने एक डिपार्टमेंट ही अलग कर रखा है कि वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। जो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट इन चीज़ों पर नज़र रखेगा। इसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं, नियम बने हैं, तमाम तरह के बने हैं। अगर हम उसमें से अगर 50% भी हमने फॉलो कर दिया तो हमारे इंसिडेंट होने बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि लगभग 80% कम हो जाएंगे। अगर हमने 50% इसको फॉलो कर दिया तो हमारे इंसिडेंट होने, घटनाएं होने जो है ये 80% तक कम हो जाएंगी। यांत्रिक चीज़ है ये, जो चलने वाली चीज़, कभी कभी जो आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का इंजन है, तो इंजन की वजह से या कभी कभी ब्रेक में कोई कमी आ जाए, ना लगे, तो वो बात तो घटना की अलग है। लेकिन जब हम स्टंटबाजी करते हैं या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम इतनी बड़ी गाड़ी के बगल में हम चल रहे हैं। एक ट्रक होता है, वो ट्रक तो 10 मोटरसाइकिलों को रौंद देगा, मिनटों में उनका कचूमर निकाल देगा। ये बड़े दर्दनाक सीन होते हैं। सीनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हम लोग देखते हैं। बॉडी को इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो इस तरह का होता है, तो कुछ अंग अलग कट जाते हैं। तो ये तब होता है जब हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। सड़क पर चलना ही तो है, कभी नहीं से देर वाली। जब आपको कभी नहीं पहुंचना है, अगर आप देर से पहुंच जाएंगे तो कोई बात नहीं, आपका इंतजार होता है, आपके मम्मी पापा आपका इंतजार करते हैं, और आपका घर पर पहुंचना कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप सुरक्षित पहुंच जाएं। और अगर आपके टाइम से घर पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर शंकाएं पैदा होती हैं मम्मी पापा को, वो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया होगा, कभी कभी कुछ हो भी जाता है। तो फिर ये बहुत सोचने का विषय है। ये सब कुछ, ये ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाने से होता है, ये हमारी अवेयरनेस के अभाव में होता है। जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो ये इसके अभाव में होता है, ज़्यादातर ये इसी के अभाव में होता है। अभी आपके आगे हैं वतन साहब, आगे हैं, आपका स्वागत है।
और स्कूल की तरफ से मैं ही कर लेता हूँ आपका स्वागत। धन्यवाद। आइए, वेलकम। तो हमारे गौतम साहब जो हैं इस मामले में सबसे ज़्यादा जागरूक इस समय मुझे लगता है कि सिटी के अंदर इस प्रकार के प्रोग्राम करवाते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, हम कहते हैं नहीं आ पाएंगे। ये हमको प्रेम है या अपनी इस धरोहर को बचाने के प्रति आपका बहुत एक, मैं समझता हूँ कि एक मिशन है इनका, और ये इस मिशन में कहीं ना कहीं सफल होते जा ही रहे हैं। अभी मैं बता दूं कि मुझे आना नहीं था, गौतम साहब ने कहा इसलिए मैं आया हूँ। मैं 2 दिन के बाद रिटायरमेंट है मेरा, मैं चला जाऊँगा परसों इस सर्विस छोड़ के। देखो मेरा 60 साल की एज हो गई है, और मैं चला जाऊँगा कंपल्सरी रिटायरमेंट। लेकिन गौतम साहब ने कहा तो मैंने अभी आपको बताया कि नहीं कि मेरा एक ऐसा है, मैं फिर भी उनके कहने से आ गया और आ गया। काफ़ी दूर भी रहता है, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियाँ जो होती हैं ये बहुत हमारे लिए एक किस्म से प्रेरणा के काम करती हैं। अभी आपकी तरफ से प्रेरणा मिली तो हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पर हमने 2 शब्द अगर बोले होंगे, इसमें से एक शब्द भी आप समझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी घटनाएं हमारी रुक सकती है। मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा इसमें आपको एडॉप्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें लेनी। किसी ने कुछ कर दिया हो, कोई मिसबिहेव कर दिया हो तो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी पुलिस की ट्रेनिंग पर इस बात में बल दिया जाता है कि सभी लोग, पुलिस के लोगों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है, बहुत जोर दे करके कि वो जनता के साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार करें। और अगर आप नहीं करते हैं कोई व्यवहार तो उसके उच्च अधिकारी के पास जाकर के आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पुलिस के बारे में आपको अपना सोच बदलना है, पुलिस से पूछिए, बार बार पूछिए, ठीक है। तो सवाल और किसी को नहीं पूछना है, नहीं पूछना है। तो अभी आपको मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप लोगों के इस स्कूल की इस प्रबंधन को और आप सभी बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए, आप इतनी देर तक हमें सुने। अभी हम स्टॉप।